Good morning, dear students. Once again, now what we have to do, we are moving towards the next topic, okay? And the next topic is very, very interesting. That is the area. अब हम लोग area की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं. But before starting the main topic, that is area, okay? We have to revise some important topic that we have already learned, but we have to understand, okay? And dear students, in this video, you will understand about the perimeter and area. That means you will understand about the perimeter as well as area. And one more thing, you will understand what is the exact difference between the perimeter and area. Perimeter और area के बीच में exact difference क्या होता है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. Okay, so now I have written here the definition of perimeter, and we have already learned about the perimeter. Perimeter is what? Okay, length around. Okay, that is the total length around the closed figure. ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? इट इज अ टोटल लेंथ ऑफ क्लोज्ड बाउंड्री. ठीक है, ये क्या है? टोटल लेंथ ऑफ क्लोज्ड बाउंड्री है. ठीक है, वॉट एवर द पॉलीगन वी हैव और वॉट एवर द क्लोज फिगर we have to find all the total length of boundary, and that is equal to what? That is a perimeter. That means what? Let's understand about the perimeter once again. Let us suppose I have a closed figure like this. Okay, this is a rectangle. What is this? This is a rectangle, and this rectangle is made up of 4 sides. How many sides? 4 sides. Okay, 4 sides are there. That means this is a polygon which is made up of 4 line segments, and the name is a quadrilateral. This is a special type of quadrilateral. Okay, and the name is rectangle. ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल नाम है, एंड दैट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड सेम होती है. अपोजिट साइड मीन्स व्हाट? दिस साइड एंड दिस साइड, दिस 2 साइड्स आर अपोजिट एंड दिस 2 साइड्स आर अपोजिट. अपोजिट मतलब मैं, इट इज वेरी सिंपल. अपोजिट मीन्स व्हाट? यू आर अपोजिट ऑफ मी. मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हो. यस, द डायरेक्शन ऑफ टू थिंग इज just 180 डिग्री. यू डोंट नो व्हाट इज अ 180 डिग्री? बहुत सिंपल है. आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं. दैट इज अ अपोजिट डायरेक्शन. इफ आई वांट टू क्लोज द मार्कर विद दिस, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैप. अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो मैं ऐसे क्लोज नहीं कर सकता, या फिर दोनों को सेम डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो क्लोज नहीं होगा. आई वांट टू पुट अपोजिट. आई विल मूव दिस मार्कर टुवर्ड दिस साइड एंड दिस कैप टुवर्ड दिस साइड, so it will be closed. Okay, so like this, the opposite sides are equal. Okay, so what is the perimeter? Perimeter is a total length of closed boundary. And what is this? This is a rectangle, and we know that rectangle is a simple closed figure which is made up of line segments, and it is a closed figure. ये क्या है? closed figure है. अब ध्यान से समझो. मान लो कि ये 3 सेंटीमीटर है. मैंने फिर से बोला, क्या बोला? The length of this rectangle is 3 centimeter, and width या फिर breadth भी बोलते हैं. Breadth is called as, generally if it is 2-dimensional figure, we will say that it is a breadth. Okay, width हम लोग तब यूज करते हैं जब 3-dimensional figure होता है. ठीक है, so we will understand about the 3-dimensional figure in the next class, but here we have to understand about the 2-dimensional figures. ठीक है, अगर आपको समझना है 2-dimensional figure और 3-dimensional figures क्या होते हैं, just search on Google. That is 2-dimensional figure versus a 3-dimensional figure. You will understand. Okay, and click on the images. So this is a 2-dimensional. So now we know that it is a rectangle. The opposite sides of a rectangle is same. So I will write here 3 centimeter. These 2 sides are 3 centimeters. Okay, and I'm writing it here. It is 2 centimeter, and that is also 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ दैट इज चौड़ाई, दैट इज अ 2 सेंटीमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई सेड फाइंड आउट द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल, व्हाट वी हैव टू डू? वी विल ऐड ऑल द गिवन साइड्स. वी हैव टू ऐड ऑल द गिवन साइड, देन ओनली वी विल गेट अ total length of the closed boundary. If you want to find out the total length of the closed boundary, we have to add, that means sum of all the sides. ठीक है, मैं सबको ऐड कर दूंगा. एक काम करते हैं, एरिया इसी में समझते हैं. चलो देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट डिवाइडिंग. लुक हियर, दिस इज अ 2 सेंटीमीटर. this length is a 2 centimeter. So I am breaking it into 2 parts. अब मैंने क्या किया,
दो लाइन में कट आउट कर दिया. सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज 1 सेंटीमीटर. ये 1 है और यहां से यहां तक 1 है. एंड हियर इज ऑल्सो दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. This is 1 centimeter. Listen, that is 1 centimeter. This is also 1 centimeter. So the total is 2 centimeter. Okay. I'm just converting this rectangle into the square grid. Square के फॉर्म में ग्रिड तैयार करना चाहता हूं मैं. अब यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है. So I want to break into 3 parts of 1 centimeter each. ठीक है. तो मैं इसको 3 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर के 3 टुकड़े में डिवाइड कर देता हूं. Okay, so listen dear students, this is a 1 centimeter, this is 1 centimeter, this is 1 centimeter and this is 1 centimeter. So I will say that the square of each small square, हर एक छोटा square का side है 1 centimeter. ठीक है. All the small sides of the square is 1 centimeter. So dear students, now listen carefully. I want to find out the perimeter of this. I want to find out the perimeter of this rectangle. मुझे इस rectangle का perimeter चाहिए और area चाहिए. दोनों के दोनों चाहिए. ठीक है. तो पहले मैं perimeter निकालूंगा. तो ध्यान से देखो perimeter कैसे निकालूंगा. ठीक है. We have already learned how to find out the perimeter of any figure using the square grid. Yes. What we have to do? We have to count the number of sides. That means the number of small sides. लेकिन अंदर की साइड नहीं गिनेंगे. अंदर की साइड क्यों नहीं गिनेंगे? बिकॉज इट इज नॉट ऑन बाउंड्री. अरे मुझे पैरीमीटर चाहिए. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द पैरीमीटर माय डियर. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द पैरीमीटर. और मुझे पता है कि पैरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? दैट इज अ टोटल लेंथ ऑफ क्लोज्ड बाउंड्री. मैं फिर से बोल रहा हूं, दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लोज्ड बाउंड्री. मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री से लेना देना है. मुझे सिर्फ बाउंड्री से मतलब है. अब मैं बाउंड्री के लाइन सेगमेंट्स गिनूंगा. आई विल फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री. टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री. सो हमारा जो बाउंड्री है ये है आउटर साइड में है. इट इज अराउंड द फिगर. इट इज अराउंड दी फिगर. अरे फिगर के आसपास वाला लेना, अंदर वाला नहीं लेना भैया. तो मैं गिनता हूं. ये 1 सेंटीमीटर हो गया इतना. सो आई एम काउंटिंग लाइक दिस. 1 2 डन. देन दैट इज 3 4 5 it is done. 5 1 minute. 5 that is 6 7 this length 8 9 10. So dear students, as you can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So it is a total length of closed boundary. Each side, dear students, each side is of 1 centimeter. Each side is of 1 centimeter. हर एक साइड 1 सेंटीमीटर का है. ठीक है. So 1 centimeter plus 1 plus 1 plus 1. When you will add all the line segments small, you will get the perimeter. That is the total length of closed boundary. मुझे पता है कुछ लोगों को बोर मार रहा है, बट देखो, ठीक है, that is a P perimeter is equal to 10 सेंटीमीटर. पेरीमीटर जो है इस रेक्टेंगल का जो है वो है 10 सेंटीमीटर. हमारा जो पेरीमीटर है दैट इज रिलेटेड विथ लेंथ. हमारा जो पेरीमीटर है वो लेंथ से रिलेटेड है. अरे लेंथ से रिलेटेड है. लेंथ तो क्या करूं? लेंथ से रिलेटेड हो तो हाँ, यूनिट जो है वो लेंथ का ही आना चाहिए. यहां पर गलती से भी लीटर या किलो लीटर या किलोग्राम मत लिख देना, ये तो पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर दैट द पेरीमीटर इज रिलेटेड टू लेंथ. दैट्स व्हाई वी विल राइट द यूनिट देयर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. यस, ये लिख सकते हैं. अगर मान लो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं है तो सिंपल राइट UNIT, यूनिट. यूनिट का मतलब जो भी यूनिट होगा भगवान भरोसे, व्हाटएवर. ठीक है. तो अगर नहीं है, लेट अस सपोज दैट द यूनिट इज नॉट गिवन, सो वी विल राइट हियर यूनिट इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर. सेंटीमीटर के जगह इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर आई विल राइट
UNIT, दैट इज अ 10 यूनिट्स। क्या लिखूंगा मैं? 10 यूनिट्स। अरे क्या लिखूंगा मैं? 10 यूनिट्स। बोलो भाई बोलो। हाँ ठीक है, दैट इज अ 10 यूनिट्स। लेकिन यहां पर मैंने सेंटीमीटर दे दिया था। अब आती है एरिया की बारी। ठीक है, अब आती है एरिया की बारी। क्या है ये ससुरा एरिया? हाँ, व्हाट इज मीन बाय एरिया? क्या है एरिया? इट इज अ सरफेस, सरफेस इनसाइड, सरफेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री। क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर का सरफेस है ये जगह। हाँ ये क्या है देखो, आई एम जस्ट टचिंग द सरफेस। व्हाट इज दिस? दैट इज द प्लेन सरफेस। क्या है ये? एकदम प्लेन सरफेस है। लुक एट माय हैंड, मेरा हैंड, हाथ एकदम प्लेन नहीं है, ऐसा उबड़ खाबड़ है थोड़ा सा, बट थोड़ी देर के लिए समझ लो। इट इज अ प्लेन सरफेस। क्या है ये? लाइन है क्या ये? नो, इट इज अ सरफेस। सरफेस है, सरफेस बोलते हैं इसको। इट इज अ प्लेन सरफेस। यस, वी हैव लर्न दैट रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस। पढ़े थे क्या KG1 KG2 में? हाँ पढ़े थे। ठीक है, दैट इज अ सरफेस, सरफेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री। लेट अस सपोज दैट देयर इज अ फिगर। एक और फिगर बनाते हैं चलो। ठीक है, अभी मेरे पास ये फिगर है, ये जो है फिगर है, और अगर मैं बोलता हूं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इज रिलेटेड विथ ये बाउंड्री। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, अंदर से कोई लेना देना नहीं, बट एरिया का लेना देना अंदर से है। लेट अस सपोज दैट इट इज अ व्हाटएवर, जो भी होगा ये रेक्टेंगल जैसा होगा या जो भी है, क्लोज बाउंड्री है, बस क्लोज होना चाहिए। तो जो ये एरिया है ना अंदर का, that is what? That is a surface inside the closed boundary. That is a closed boundary and surface inside, surface inside, अंदर अंदर, surface inside the closed boundary, that is called as the area. अगर मेरे पास एक बॉक्स है ये वाला, इसके अंदर का एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, इफ आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉल क्लोज्ड फिगर, स्मॉल क्लोज्ड फिगर, कम आएगा एज कंपेयर टू दिस। अरे देखो ना इसका, इसमें ज्यादा जगह है। इट इज द यस, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, दिस इज अ क्लोज्ड फिगर, बट इसके अंदर जगह ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फिगर। सो द एरिया ऑफ दिस फिगर इज मोर देन दिस फिगर। क्या बोला? फिर से बोलता हूं, इसका एरिया इससे ज्यादा है। इसके अंदर का एरिया यानी कि जगह, जगह दैट इज कॉल्ड एज द एरिया। सरफेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर की जगह, सरफेस, अंदर का सरफेस, बाउंड्री के अंदर का सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज एरिया। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, एरिया मीन्स व्हाट? सरफेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री। ठीक है, सरफेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना भैया। फिर से बोलता हूं, यहां पर यूनिट का ध्यान रखना। ठीक है, गड़बड़ मत करना। ठीक है, सरफेस का जो यूनिट है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए एरिया। तो भैया देखो ध्यान से, व्हाट इज द एरिया? लेट अस सपोज एरिया का मतलब क्या है? एरिया दैट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर बना नहीं, हाँ एक मिनट, गिव मी अ 1 मिनट। अरे स्क्वायर बनना रे, कैसा करता था बाबा? हाँ ओके, दैट इज अ स्क्वायर। ओके, दैट इज अ स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि जो स्क्वायर है उसकी चारों के चारों साइड सेम होती है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। सो व्हाट इज मीन बाय एरिया? इट इज व्हाट? सरफेस इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड एज द एरिया। ये है आपका एरिया। इसका जो यूनिट है वो ऐसा होता है, What you want to find? It is a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमेशा स्क्वायर में ही गिना जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग इसको सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर में गिनते हैं ना, इसको स्क्वायर्स में गिनते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 मीटर। ये जो एरिया है इसके अंदर का, इट इज द स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। दैट मीन्स ऑल द साइड ऑफ दिस square, all the sides of this square is 1 centimeter,
and the area inside. My dear students, listen carefully. Area inside this small square of side 1 centimeter is 1 square centimeter. 1 SQCM. क्या बोला मैंने? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. एक पूरा स्क्वायर, वो भी कौन सा? सेंटीमीटर का. ठीक है, ये सेंटीमीटर का है. अब चलो देखो, वहां सेंटीमीटर है, अगर यहाँ मीटर है तो मीटर आ जाता, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही जलेबी वही है. ठीक है, तो अभी चलो इसका एरिया निकालते हैं. हम लोगों को सिर्फ नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना है. क्या काउंट करना है? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इनसाइड दी, एक मिनट भाई, हाँ, नंबर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द क्लोज्ड बाउंड्री. अरे क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर में कितने कितने स्क्वायर है? तो ये हो गया, ये वाला हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. दूसरा वाला पकड़ भाई, चल पकड़, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. लेट्स ऐड वन मोर. दैट इज व्हाट? दैट इज अ 3 स्क्वायर सेंटीमीटर. 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. 4, 4. 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. And that is a 6 square centimeter. So dear students, in this closed figure, there is a 6 small square of 1 centimeter. है ना? हर कोई 1 सेंटीमीटर का तो पकड़ा हुआ है. ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1. अब हम लोगों को नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है एरिया में. If you want to find out the area, we have to count the number of squares. So that is a 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. कितना है इस खतरनाक का एरिया? है, एरिया को मैं ए से लिख देता हूं. ए इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. दिस स्क्वायर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ एरिया. जैसे हम लोग कैपेसिटी का यूनिट लिखते हैं ना, लीटर, किलो लीटर, लीटर, है ना, वैसे ही लेंथ का यूनिट है वो सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर. ठीक है. सिमिलरली द यूनिट ऑफ वेट इज किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, ये सब यूनिट है. वैसे ही सिमिलरली स्क्वायर सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ एरिया. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर मान लो कहीं पे सेंटीमीटर नहीं दिया है, हमको पता ही नहीं है कि जो लेंथ जो भी है, we don't know about the length of each side. ये जो छोटी सी साइड है, ये हमको कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ ऐसा 2 लिखा है. अब वो 2 मीटर है क्या 2 किलोमीटर है तो भगवान जाने. सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इन दैट केस, आई विल राइट, इसको मैं क्या करूंगा, बस ये सेंटीमीटर के जगह यूनिट कर दूंगा. आई विल राइट लाइक दिस, 1 स्क्वायर यूनिट, वॉट एवर द यूनिट. हो सकता है सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी हो भगवान भरोसे है भैया. इफ वी डोंट नो वी विल राइट यूनिट, अगर हमको पता नहीं है तो. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर देयर इज अ क्लोज फिगर. ये मेरे पास एक क्लोज फिगर है, ये मेरे पास क्लोज फिगर है. अरे ध्यान दो, इधर लिखो मत. ओके, दैट इज अ क्लोज फिगर, दैट इज अ क्लोज फिगर. एंड नाउ दैट इज अ क्लोज फिगर. आई जस्ट ब्रेक डाउन, आई जस्ट ब्रेक इट, आई जस्ट ब्रेक इनटू दिस स्मॉल स्क्वायर. मैंने छोटे छोटे स्क्वायर बना दिया है, मैंने इसको सिर्फ स्क्वायर ग्रिड में कन्वर्ट किया है. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस क्लोज फिगर. सो पेरीमीटर जो है वो रिलेटेड है टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री. दैट इज रिलेटेड विद द टोटल लेंथ ऑफ क्लोज बाउंड्री. क्लोज बाउंड्री की मुझे लेंथ चाहिए, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये जो हर एक साइड है वो 1 मीटर की है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5. सो दिस टोटल लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज 5 मीटर. यहां से लेके यहां तक जो है वो पूरा 5 मीटर का है. सो मैंने इसके 5 कॉलम कर लिए, 1 दैट मींस 5 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5. ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 मीटर. 1 2 3 4 5, है ना. तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1, ये 1, सब कुछ 1 हो गया. एंड सिमिलरली 1 2 3 एंड दैट इज अ 3 मीटर. ध्यान से देखो भैया, दैट इज अ 3 मीटर, 1 2 and 3. So dear students, this is a closed figure whose length is 5 meter and the width that is a breadth. अरे बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा देखो. ब्रिथ जो है दैट इज कॉल्ड एज चौड़ाई,
और विड्थ का मतलब भी चौड़ाई होता है, ठीक है। बट हम लोग जब सरफेस की बात करते हैं वी विल यूज अ ब्रेथ, ठीक है। जो विड्थ है वो हम लोग क्यूबॉइड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, क्यूबॉइड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है, तो वहां पर ब्रेथ नहीं बोलते हम लोग, वहां पर विड्थ बोलते हैं, ठीक है। बट द मीनिंग इज सेम, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। तो दैट इज द लेंथ 5 मीटर एंड दिस इज अ विड्थ और ब्रेथ that is a 3 meter. So now I want to find out the perimeter. So first of all I want to check it is visible in camera. कैमरा में दिख रहा है का नहीं? हाँ ठीक है, दिख तो रहा है। कहाँ तक दिख रहा है भाई? ठीक है, बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, इट्स ओके। सो आई वांट टू फाइंड आउट द पैरामीटर, सो आई विल राइट P इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो मैं इसको काउंट भी करूंगा, इसको भी काउंट करूंगा क्योंकि बाउंड्री पे है ये, ठीक है। कितना आया था भाई? 15, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। Sorry dear student, that is 16, okay, that is a 16, but how it is 16? 16 कैसे आ गया? 15 आना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। How it is possible? ओके, हो सकता है 16 हो, चलो दो बार गिन लिए, 16 ही है, ओके, दैट इज अ 16। नाउ द यूनिट इज मीटर, सो आई विल राइट 16 मीटर। सो दिस 16 मीटर इज अ पैरामीटर ऑफ दिस क्लोज फिगर, ठीक है। 16 मीटर है, हाँ। 15 जो है वो एरिया आने वाला है, 15 है वो एरिया आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बट अब एरिया आएगा। सो नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। So the area of this closed figure is A is equal to 15 square, 15 square, but अब यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, so I will write meter. It is a 15, अरे अच्छे से लिखना, हाँ 15 square meter. Okay, I hope you understand. मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, okay. You understand about the area? Simple है, बहुत ही ज्यादा simple है। First thing I want to tell you, perimeter is related with the length, that is the total length of closed boundary. And what is an area? Area is the surface inside the closed figure. Closed figure के boundary के अंदर, boundary के अंदर की जगह, that is called as the surface, ठीक है। And that surface inside the closed boundary, that is called as the area. If there is a one box which is small and there is a box, नहीं बोलूंगा मैं, स्क्वायर या फिर क्लोज फिगर बोलूंगा, ठीक है। एक मेरे पास एक क्लोज फिगर है, आई हैव अ वन क्लोज फिगर एंड वो थोड़ा सा साइज में छोटा है और दूसरा जो क्लोज फिगर वो साइज में बड़ा है। सो आई विल से दैट द बिगर द साइज ऑफ द टू डायमेंशनल फिगर, सो द एरिया इज ऑल्सो मोर, उसका एरिया ज्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे देयर इज अ टू फिगर्स, तो जो बड़ा वाला फिगर है उसका थोड़ा सा पेरीमीटर भी ज्यादा है और एरिया भी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। क्विकली नोट डाउन इन मैथ्स नोटबुक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू टिल नाउ एंड हैव अ गुड डे। Bye bye. If you have any doubts regarding this topic, you can ask me. So bye everyone. Bye bye.